Everyone, I hope you all are doing well. And today in this session, we'll be continuing with a few of the cloud computing concepts. As we have already discussed, under cloud computing concepts, we have already discussed about leverages the internet, how elasticity and scalability is provided by using cloud computing, and about virtualization we have done, then characteristics of virtualization, benefits of virtualization, and hypervisors that we have already discussed, multi-tenancy, types of multi-tenancy, that all we have done under cloud computing concept. And today in this session we will be discussing few more of the cloud computing concepts. So let's start with the very first one, that is application programming interface. I just want to confirm my slides are visible to you. Anyone just revert me back if my slides are visible. All right, Jyoti, thank you for your response. Let's start with application programming interface, APIs. How what actually APIs are over cloud? So how APIs work with cloud environment? We all are well aware with APIs, application programming interface. So what actually programming interface program is about? So as we know, APIs are collection of program interface that provides access from one computer system into another computer system software. So actually API होता क्या है? It is a standard application program interface. एक interface है between the computers, or it can be interface between one hardware and the other software. So which helps us to interact with each other. So this is how APIs work. Yes. So like we can say that API is what it is, a mechanism, एक ऐसा mechanism या एक abstraction है जो एक ब्रिज की तरह काम करती है बिटवीन एनी सर्विसेज और एंटिटीज। दो चीजों में जब भी कम्युनिकेट करवाना है, आपको इंटरैक्ट करवाना है, कॉन्फ़िगर करवाना है, उसमें एक इंटरफेस होना जरूरी है। सो वो इंटरफेस जो होता है दैट इज एपीआई। So over cloud application programming, the interface is a mechanism or abstraction that define an interface between cloud services and other entities. So the cloud services, as we know, they can vary from provider to provider or on demands of customers. So क्लाउड सर्विसेज जो है वो वेरी कर सकती हैं, पर उनमें जो एपीआईज हैं, कौन से एपीआईज हैं, किस तरह वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो हमें एक्चुअली द प्रोवाइडर जो है, जो होस्ट है, उनको वो मैकेनिज्म्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सो here if we talk about like according to API management company, it's a very renowned standardized company, that is Mashre of API management. So it categorizes the whole cloud APIs in three categories. इनके according जो APIs हैं वो तीन categories की होती हैं. One is control API, data APIs, and application functionality APIs. So controlled APIs क्या होते हैं हमारे पास? Control APIs are basically the one who configures, who help the customer to configure their cloud services. ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में. So APIs that allow the end customer to configure their cloud provision services. जो भी प्रोविजनिंग देनी है सर्विसेज की, क्या सर्विसेज देनी है, वो कस्टमर चूज करेगा कि उसको क्या क्या सर्विसेज लेनी है.
बट उस पैकेज में, उन सर्विसेज में होस्ट और जो यूजर सिस्टम्स हैं उनको आपस में कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वो इंटरफेस जो है जो डिसाइड करता है, दैट इज टर्म्ड एज कंट्रोल एपीआईज. So we have an example of Amazon EC Square, that is control API. So it provides a multitude of APIs that allow customers to configure their services as defined within Amazon Elastic Compute. So here we have Amazon Elastic Compute Cloud, which also refers to a control API, which includes allocation of internet protocols. वो decide करता है कि कौन से protocols पे काम किया जाएगा, control करता है उन protocols को कि इंटरनेट पे किन protocols को, किन IPs को हम use करने वाले हैं communications के लिए, addresses के लिए. Then it creating or editing any access control list or maintaining of specific instances. इंस्टेंस कैसे मेंटेन होंगे, उनको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, और कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी सर्विस है उनको क्रिएट या एडिट कैसे करना है, ये सारा कंट्रोल लिस्ट जो होती है वो मेंटेन करता है कंट्रोल एपीआईज. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव डेटा एपीआईज. सो डेटा एपीआईज क्या होते हैं कि जो वो वाले इंटरफेस जो हेल्प करती हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को मूव करने में, ठीक है, ट्रांसफर करने में फ्रॉम क्लाउड टू यूजर और फ्रॉम यूजर टू क्लाउड. आपने कोई डेटा क्लाउड पे स्टोर करवाना है, स्टोरेज स्पेस तक पहुंचाना है, तो वो ट्रांसफरेशन का प्रोसेस जो है, मैकेनिज्म है, वो उसमें जो हेल्प करते हैं दैट आर टर्म्ड एज डेटा एपीआई. सो एपीआईज विद इन विच डेटा में फ्लो into or out of the provision service, that is termed as that is referred to as data APIs. And such data flows can also be into alternate cloud providers, so that data can flow from one provider into the provision service provided by alternative provider. So we may have indulge into more number of clouds. Maybe हम एक cloud से service नहीं ले रहे हैं, multiple cloud से ले रहे हैं. So एक cloud से data हम ले रहे हैं, उसको कुछ manipulate कर रहे हैं, then उसको हम store कहीं और data cloud पे करवा रहे हैं. So ये सारी migration, transformation जो है इसमें help करता है data APIs. अब इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, आपका डेटा जो है अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है, अलग कंपैटिबिलिटी सूट्स में हो सकता है. सो उन कंपैटिबिलिटी सूट्स को आपके सिस्टम तक पहुंचाने के लिए और आपके सिस्टम के सूट्स को कंपैटिबल करवाने के लिए टू द क्लाउड, सो इन चीजों में जो हेल्प करता है वो होता है आपका डेटा एपीआई. Afterwards, we have application functionality APIs. Although the like earlier APIs provide the ability to transfer data between alternative providers or indeed management of overall solution, the application functionality APIs can provide considerably more functionality that the end customer can interact with. ये एक इंटरमीडिएटरी फंक्शनैलिटी हमें एक एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं. जैसे अगर हमने कोई भी रिसोर्स या प्लेटफॉर्म यूज करना है ओवर द क्लाउड, सो ये वो वाली एप्लीकेशन होती है, हमारे पास इंटरफेस होता है जो हमें एडिशनल टूल्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या रिसोर्स को और एफिशिएंटली यूज कर सकें. ठीक है, इजी इजी इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं एक एडिशनल फंक्शनैलिटी टूल सेट के साथ. तो ये एपीआईज हमें एक ही पर्टिकुलर रिसोर्स या एप्लीकेशन को यूज करने के लिए एडिशनल और यूजर फ्रेंडली टूल्स या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं. So APIs can here considerably of more functionality at the end customer can interact with and range from simple availability of like shopping basket to interact with social networking solutions. So these are kind of application functionality APIs which provide us with some additional functionality. Then moving on to next, we have in continuation with APIs. So till now we have discussed about what API is. So over cloud service,
services. Here we have a standardized application programming interface. तो हमारे पास हर कैटेगरी के एक स्टैंडर्डाइज डिफाइंड एपीआईज हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, एज इन कंट्रोल एपीआईज, डेटा एपीआईज एंड application functionality APIs. And moreover, it is the interface here defines how two or more applications and data resources can communicate with each other. So they can communicate as in multiple application communicating or multiple data source communicating. So application to application is also interface available, and data sources, like if you want to store your personal data over a database over the cloud, so उनमें interaction कैसे होगी, या एक ही डेटा स्टोर में आपने स्टोर करवाना है या मल्टीपल डेटा स्टोर्स में स्टोर करवाना है, ये चीजें कौन ध्यान रखता है? APIs. Then we have is the cloud APIs, which allows customers or companies infrastructure or applications to plug into the cloud. And concurrently different cloud vendors are deploying different APIs. So we have variations in APIs as well. So cloud APIs have not been standardized yet. We do have variations from vendor to vendor or company to company. They have their own norms. सबकी अलग standardization है, अलग mechanism है. So we have to check for what kind of services or the ease we are into. हमें जो comfortable है हम उसी cloud service उसी vendor से service लेंगे. तो क्योंकि standardization अभी भी define नहीं है, अभी भी vary करती है. So here uh, we have to beware of vendor API that is of lock-in type. लॉक-इन वेंडर सर्विस में क्या होता है कि आप जैसे एक पैकेज लिया आपने, आपको कुछ सर्विसेज उसमें इंक्लूडेड मिल रही हैं, तो आप उसी में ही लॉक इन हो जाएंगे. ठीक है, आप अगर स्विच करना चाहते हैं किसी और पैकेज में, या आपने एक पैकेज लिया, एक मेंबरशिप प्लान लिया, आपको लग रहा है कि आपको कोई और मेंबरशिप प्लान है जो उसमें सर्विसेज हैं, आपको वो भी चाहिए, या ये वाला जो है ये आपका अभी मतलब नॉन बाउंडेड नहीं है, आप एक बार आपने पैसे दे दिए, आप उसी में फिक्स हो गए, आपको वही सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, तो आप स्विच नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमें लॉक इन सर्विसेज जो है ना उनमें नहीं जाना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल और इजी टू स्विच सर्विसेज ही प्रेफर करनी चाहिए. हो सकता है आपने एक मिनिमम प्लान लिया है, एक मिनिमम मेंबरशिप प्लान लिया है, और आप उसकी सर्विसेज से खुश हैं, पर आप आगे के लिए स्विच करना चाहते हैं किसी और मेंबरशिप प्लान में, पर वो आप हो सकता है उस वेंडर की सर्विसेज में स्विचिंग अवेलेबल नहीं है, आप नहीं जा सकते क्योंकि आप लॉक इन हो चुके हैं. सो आपको या तो पहले ही बड़ा प्लान लेना पड़ेगा, अब बड़े प्लान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हो सकता है उसकी सर्विसेज आपको सूटेबल ना हो, आप उसको इजीली कोप नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फ़िगर नहीं पा रहे हैं, या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं हो रही, तो आप छोटे प्लान की तरफ नहीं आ सकते उस केस में भी. सो आपको लॉक इन सर्विसेज जो है वो अवॉइड करनी चाहिए. And nowadays the most popular API integration here are available are of SOAP and REST. So ये दो APIs हैं जो integration services बहुत popularly adapt हो रही है market में, that is SOAP and REST. Then moving on to the another concept. So APIs के लिए यही था majorly हमारे पास. The next concept of cloud computing here is billing and metering of services. So what actually billing and metering of services here? हम क्लाउड पे काफ़ी सर्विसेज है जो यूज़ करते हैं, और हम उन सर्विसेज के लिए पे भी करते हैं. तो हमें कोई ना कोई ट्रैकर तो चाहिए है, कोई ना कोई ऐसा मीटर चाहिए है कि जो हमारी बिल्स को मॉनिटर कर सके कि हमने रिसोर्सेज कितने यूज़ किए हैं, कौन सा पैकेज यूज़ किया है. तो इस चीज़ का मीटर हमें रखना पड़ता है, इस चीज़ का काउंट
मॉनिटरिंग इसकी रखनी पड़ती है सो दैट हम बिल जनरेट कर सके। दिस इज विद द परस्पेक्टिव ऑफ होस्ट। ठीक है, कि कौन सा यूजर आ रहा है, होस्ट को मेंटेन करना है, प्रोवाइडर को मेंटेन करना है कि कौन सा यूजर आ रहा है, कब आ रहा है, और उसने कब कौन सा रिसोर्स यूज किया है, कितने टाइम के लिए यूज किया है। अगर स्टोरेज सर्विस यूज कर रहे हैं, स्टोरेज में वो कितनी स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितने सालों के लिए उन्होंने यूज की है। तो ये सारा कुछ मॉनिटर करता है मीटरिंग एंड बिलिंग मैकेनिज्म। सो मीटरिंग एंड बिलिंग मैकेनिज्म में बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज प्रायरली यूज टू कैलकुलेट द कस्टमर चार्ज एंड क्लाउड यूजेज is tracked by metered services. Here billing services should be automated. हमें कोई एक ऐसा ऑटोमेटेड मैकेनिज्म इंस्टॉल करना होता है कि हमारी बिलिंग सर्विस जो है, बिलिंग मॉनिटरिंग है, वो ऑटोमेटिकली होती रहे। हमें बैकएंड पे ऑपरेटर्स नहीं चाहिए जो ट्रैक करेंगे कि इस पॉइंट पे कस्टमर ने कितना किया। ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रैक होना चाहिए। और कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर को खुद भी पता चलना चाहिए कि उसने एक पर्टिकुलर सर्विस कितनी देर तक यूज की थी, कौन कौन सी सर्विसेज क्लाउड पे ली हैं जिसके लिए अगेंस्ट उसको बिल आ रहा है। तो ये टू वे है, प्रोवाइडर को भी ट्रैकर चाहिए होता है, मॉनिटर करना होता है, और कस्टमर को भी चेक करना होता है, मॉनिटर करना होता है कि उसने कितना यूज कर लिया है। तो हमें दोनों तरह के मैकेनिज्म पे वर्क करना पड़ता है इसमें। और बेसिकली जब भी हम बिल्स के लिए ट्रैक करते हैं तो हम क्या ट्रैक करते हैं, प्रोवाइडर व्यू पॉइंट से हम चेक करते हैं कि कितने यूजर्स आए, नंबर ऑफ यूजर्स, कैपेसिटी यूज्ड, उन्होंने कौन से रिसोर्स की, कौन सी स्टोरेज की कितनी कैपेसिटी यूज की है। देन सर्विसेज लेवरेजेस, कौन कौन सी सर्विसेज उसने यूज की हैं। एक सर्विस में हो सकता है मल्टीपल रिसोर्सेज यूज किए हैं, सो बट किस कैटेगरी की किस ग्रुप की सर्विस उसने यूज की है, वेदर इट इज ऑफ स्टोरेज टाइप, वेदर इट इज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, वेदर इट इज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, और वेदर जस्ट अ मेलिंग एंड बैकअप सर्विस। तो किस तरह की सर्विस वो यूज कर रहा है, इसका ट्रैक हमें रखना होता है। So, moving on to next. Moving on to next, organizations here using cloud services typically receive daily emails that provide alerts for spending data and uses spikes, sudden and unexpected changes and more. So this is called metering. Basically कौन सा यूजर है, वो कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, और उसका अगर अलर्ट जनरेट करना है कि लेट से उसने एक पर्टिकुलर सर्विस जो है उसकी ओवर होने वाली है, तो उसको एक अलर्ट चला जाएगा कि आपकी सर्विस ये ओवर होने वाली है, या आपने यू आज के लिए डेली बेसिस पे आपको एक ईमेल अलर्ट आ जाएगा कि आज आपने इतनी सर्विस जो है वो यूज की है। So this is how it works with metering and billing. डेली बेसिस पे प्रोवाइडर को भी और यूजर को भी एक अलर्ट चला जाएगा कि आपने आज के लिए इतनी सर्विसेज, ये वाली सर्विसेज, और इतने टाइम के लिए यूज कर ली है, और इसमें से आपकी सिर्फ ये वाली सर्विसेज जो हैं वो पेंडिंग है। सो इस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं और दोनों को अवेयर कर सकते हैं, इवन द प्रोवाइडर एंड द कस्टमर, कि आपकी इतनी सर्विसेज यूज हो चुकी हैं। बच्चे आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जस्ट कंफर्म मी वंस।
All right, thank you, Mamta, Barun, Rosie. I got the responses. Thank you very much. So, क्लाउड प्रोवाइडर्स जब भी बिलिंग जनरेट करते हैं वो तीन ग्राउंड्स पे बिलिंग जनरेट करते हैं. One is dynamic pay per consume, the other one is fixed pay per use, and the third one is service based billing. सो तीन तरह की बिलिंग स्कीम्स हैं, बिलिंग मैकेनिज्म है जिस पे हम सर्विसेज देते हैं. सो डायनेमिक पे पर कंज्यूम का क्या है कि लेट्स से आपने कोई पैकेज लिया, बट उस पैकेज की सारी सर्विसेज एट वंस तो आप यूज कर नहीं रहे, कभी आपको कुछ चाहिए होगा, कभी कुछ चाहिए होगा. ठीक है. सो आप जितना यूज करोगे, जितने टाइम पे यूज करोगे, उतना ही पे करोगे उसके अगेंस्ट. उसका आप मॉनिटर रख सकते हो, उसका चेक रख सकते हो. ठीक है. सो टेकिंग एन एग्जांपल ओवर हेयर, जैसे लेट्स से आपने कुछ वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो ओवर द क्लाउड अपने पैकेज में ली हैं लीज पे. ठीक है. तो पर लेट्स से आपने वर्चुअल मशीन्स की रिक्वेस्ट की है, वो सर्विस ले रहे हो, उसमें आपकी अगर हम डेली बेसिस की बात करें, आपको 12 बजे, एक दिन में 12 बजे के अराउंड आपको लेट्स से 6 वर्चुअल सीपीस की जरूरत पड़ती है. तो उसके लिए आपको 4 वर्चुअल मशीन्स चाहिए. और हो सकता है कि जैसे लेट्स से अगले दिन आपको 2 बजे 2 GB रैम की जरूरत पड़ती है और सिर्फ 2 वर्चुअल सीपीयूज की जरूरत पड़ती है. तो आप सिर्फ उतनी सर्विस की ही पे करोगे. अगर 12 बजे आपको ज्यादा सर्विसेज चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो आप सिर्फ उस आर के उतने रिसोर्सेज के लिए पे करेंगे. और 2 बजे अगर आपको कम रिसोर्सेज चाहिए, तो 2 बजे के कम रिसोर्सेज के लिए आप पे करेंगे. ये नहीं है कि आपने अगर 8 वर्चुअल मशीन्स ले ली हैं तो आपको 8 की 8 के लिए पे करना पड़ेगा. नो, डायनेमिक के केस में ऐसा नहीं होता. जिस टाइम पे आप जितनी सर्विस, जितने रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, सिर्फ उतने का ही आप पे करेंगे, बाकियों का नहीं करेंगे. अनडाउटेडली आप चाहे रिसोर्सेज सेम ले भी रहे हैं, ठीक है, आपको वर्चुअल मशीन्स की जरूरत है, वो आपने सर्विस ली है, पर 2 बजे आपको कम रिसोर्सेज चाहिए, कम सीपीयू पावर चाहिए, 12 बजे आपको ज्यादा चाहिए, और मे बी लेट से शाम को 6 बजे आपको ज्यादा रैम की जरूरत पड़ रही है, तो आप सिर्फ उन्हीं सर्विसेज, उन्हीं रिसोर्सेज के लिए पे करेंगे और उतने टाइम के लिए ही पे करेंगे जितने की आपकी रिक्वायरमेंट है. सो दिस कम्स अंडर डायनेमिक pay billing. So let's discuss about fixed pay per use billing. Fixed pay per use is also called as static pay per use. So इसमें क्या होता है कि आपको एक पैकेज, एक मेंबरशिप प्लान फिक्स कर दिया जाता है. ठीक है. और आपको उसका मंथली बिल लेट से आपको देना पड़ता है. जैसे आपने रिक्वेस्ट कर ली कि आपको एक महीने के लिए 8 वर्चुअल सीपीयू पावर की जरूरत है और 12 GB रैम की जरूरत है. हो सकता है कि एक पूरे महीने में आपने सिर्फ उसमें से 2 वर्चुअल सीपीयूज ही यूज किए हैं और हार्डली आपकी 8 GB रैम ही यूज हुई है, पर आपको पे सारे के सारे रिसोर्सेज के लिए करना पड़ेगा. दैट इज आपको 8 वर्चुअल सीपीयूज और 12 GB रैम के लिए ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक फिक्स्ड प्लान ले लिया है. ठीक है. अगर इसका एक और ड्रॉबैक है फिक्स्ड प्लान का, कि लेट से आपको एक महीने का आपने ये प्लान ले लिया विद 8 CPU एंड 12 GB रैम. इन बिटवीन आपको मंथ मंथ मिड में आपको फील हुआ कि नहीं, आपको रैम्स और ज्यादा चाहिए और सीपीयू इतना भी चल जाएगा, बट रैम की और स्टोरेज की और जरूरत है. उस केस में या तो आप एडिशनल पे करेंगे, एक और नया प्लान लेंगे. उस नए प्लान में भी आपको सेम उतने 8 सीपीयू और 12 GB के लिए फिर से पे करना पड़ेगा. इसका ड्रॉबैक भी जाता है. बट जहाँ पे डायनेमिक सिचुएशंस नहीं होती, कि आपको पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो मंथली बेसिस पे सिर्फ 10 बिल जनरेट करती है और लेट्स से 30 कस्टमर्स को ही सर्विसेज देती है, तो उस सिनेरियो में जहाँ सिनेरियो फिक्स्ड है, उस केस में फिक्स्ड पे पर यूज इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपको प्लान्स के लिए शफल नहीं करना पड़ रहा. फिक्स्ड है, आपको इतनी ही रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए उसमें, तब आप इस प्लान के लिए जा सकते हो. Then moving on to next, we have services based billing.
सर्विसेज बेस्ड बिलिंग में क्या है कि आप किस कैटेगरी की सर्विस ले रहे हो। अभी तक हमने जो यूज किया, हम रिसोर्सेज पे ज्यादा बात कर रहे थे, ठीक है। नाउ इज सर्विस बेस्ड बिलिंग। जैसे आप ईमेल या बैकअप सर्विस ले रहे हो ओवर द क्लाउड, या प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस ले रहे हो। मींस आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म, एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, टूल किट दी हुई है, आप उस पर अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन बना रहे हो और उसको डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। द नेक्स्ट कैटेगरी वी कैन हैव इज ऑफ स्टोरेज रिलेटेड। आप अपना डेटा जो है स्टोर करवा रहे हो कहीं, ठीक है, आपने उतनी स्टोरेज स्पेस लीज पे ले ली है। तो इस तरह से आप किस कैटेगरी की सर्विस ले रहे हो, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बिल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बिलिंग एंड मीटरिंग पे काम करते हैं। So apart from this, we'll be continuing the session in 2 minutes. Just give me 2 minutes. I need to take the attendance first. So here we'll be continuing with the upcoming topics related to metering of billing and economies of scale that we will discuss in our next session. So we are left with just 4 minutes. So I don't think we will be able to cover the whole. So let's wind up the session here only. Thank you very